Recording mode. Share screen. Students, can you see the screen? Good. So the question number 1 is, show that the set of real numbers, last time डिस्कस भी किया था लोगों से, this way we write it, or is uncountable, is uncountable. ठीक है, this is what we have to prove. So last question we proved that in previous lecture that open interval 0 1 is uncountable. ये प्रूव किया था हमने, राइट? So इसी का मदद लेके with the help of this example we can prove that R is also not countable. First I suppose R is countable. हम मान लेते हैं ये काउंटेबल है, प्रूव करना अनकाउंटेबल, सपोज काउंटेबल है, राइट? देन सिंस 0 1 open interval being a subset of R, है ना, right? So this implies this must be countable. This must be countable. ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा एक मिनट वेट कर, जस्ट students, am I audible? Okay, good. So this open interval must be countable. Why? Because you have done that subset of countable is countable. Can use that result. ठीक है, तो but this 0 1 is not countable, is not countable. ठीक है, देन अगर सपोज करो जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में आता है, राइट? तो अगर लॉन्ग टाइप पे आता है तो आप इसका प्रूफ दे सकते हो, 0 1 इज नॉट काउंटेबल, प्रूव करके बता सकते हो. अगर शॉर्ट टाइम में आता है तो दिस इज एनफ. ठीक है, इज नॉट काउंटेबल, विच इज ए contradiction, which is a contradiction. ठीक है, to the fact that this R is
काउंटेबल, क्योंकि आर अगर काउंटेबल होता तो इसको भी काउंटेबल होना था, पर ये काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब आर काउंटेबल नहीं है। सो हेंस आर दस आर इज अनकाउंटेबल। तो देखा, मैथमेटिशियंस आर सो क्लेवर पीपल, कैसे प्रूव कर लेते हैं, उसी की प्रॉपर्टी चूज करा, जो रिजल्ट करा उसी रिजल्ट को चूज कर दिया और आर को भी बता दिया उसी रिजल्ट की मदद से, है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरह से आप, हाँ, तो 0 1 की जगह आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो जो आर का सबसेट और काउंटेबल ना हो। हमने 0 1 अभी पढ़ा था, हमने उसी का दे दिया। व्हाई? बिकॉज इफ इट इज काउंटेबल then every subset of R must be countable. Right? Next question. Show that the set of all primes या prime numbers is countable. कौन बताएगा आप में से? एनी पर्सन? बहुत सिंपल है। Then first tell me what is prime number? What is prime number? How we define the prime number? Anybody? Any student? कौन बोल रहा है? उदिति बोल रही है? कौन बोल रहा है? उदिता. This is not a mathematical definition. थोड़ी सी इनकम्प्लीट अभी, इनकम्प्लीट थोड़ी सी। हाँ, a number greater than 1 which are divisible by 1 itself. और ग्रेट नंबर ग्रेटर देन 1 कौन सा नंबर? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स नहीं। आपने उस समय मुझे किसी ने, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड एट दैट टाइम इज -2 इज प्राइम नंबर, बोला था किसी ने, तो आई टोल्ड दैट माइनस नेगेटिव numbers are not prime numbers. Why? Because they have 1 is a factor. Suppose -5. Here 1 is factor, 5 is factor, -1 is factor, -5 is factor. So it has 4 factors. चलो anyhow, तो बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 लिए जाते हैं, इन जनरल जे जा सकते है ना। तो दे आर ऑल बेसिकली नेचुरल नंबर्स, है ना। तो आई राइट लेट P be the set of all prime numbers, right? Then this P is subset of n, right? होगा। So since P is subset of n, और n क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ये तो प्रूव किया नहीं हमने। काउंटेबल की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट? ए सेट ए इज इक्वल टू n, ये होना चाहिए। क्या ए की जगह n लिखो तो जो इक्वलेंट होगा n के? यस। विच मैप? बाय विच मैप?
कौन सा मैप? आइडेंटिटी मैप, दोनों सेम है ना? So this P is contained in N, right? And this N is countable set. So this implies P is also countable because it is subset of countable set, right? Again, बहुत simple proof हो गया. Now we move onwards. Next question. This question is, it says that show that union of two countable sets is countable. मतलब आपके पास दो काउंटेबल सेट हैं, उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा. You see what we have to prove. So we take two sets, let A1 and A2 be two countable sets. और देखो काउंटेबल में दो चीजें हैं. What is the definition of countable? A set is either finite or equivalent to n. So since they are both are countable, so either they are finite, either A1 is finite, A2 is equivalent to n, or A1 is equivalent to n, or A2 is finite. बड़ी कंडीशन ऑप्शंस बन सकते हैं जहां पे, right? So we make cases. So we have case 1. Case 1 is if A1 and A2 are countably finite. They are finite. Then अगर ये दोनों काउंटेबली फाइनाइट होंगे तो इनका यूनियन भी काउंटेबली फाइनाइट, क्योंकि दो फाइनाइट सेल लो उनका यूनियन भी फाइनाइट ही आता है. इज आल्सो, ऐसे लिखता हूं, इज आल्सो ए फाइनाइट सेट. And hence countable. Complete. ठीक है स्टूडेंट्स? Then case 2. Case 2 is if A1 is finite, से यार काउंटेबल फाइनाइट बोलते हैं, and A2 is काउंटेबली इनफाइनाइट. जो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू n. ठीक है? तो मतलब काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन जो इनफाइनाइट है दे आर इक्विवेलेंट टू n, है ना? लिख सकता हूं ऐसा मैं, काउंटेबली इनफाइनाइट. ओके. नाउ हाउ वी शो दैट देयर यूनियन इज दिस. तो उसमें हम क्या करते हैं, अगेन वी से since A1 is countable, so I name them B1, B2, so on up to Bn. फाइनाइट एलिमेंट ऐसे होंगे. देन A2 क्या है, इनफाइनाइट, तो आई राइट देम A1, A2, A3, so on, An and so on. ये चलता रहेगा. काउंटेबल है तो इसलिए नंबरिंग आ जाएगी ना, 1 2 3 4 ऐसी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ काउंटेबल सेट्स को, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, राइट?
तो काउंटेबल सेट इनफाइनाइट जो होंगे उनको मैं A1 A2 A3 A नंबरिंग फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमें वो बताने और जहां पे हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि जो दोनों सेट के जो एलिमेंट है ये डिफरेंट मान लेते हैं, कॉमन होगा तो उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वी अज्यूम दैट all these I say AIs and VIs are distinct, ठीक है, are distinct from each other। क्योंकि सिमिलर होगा तो उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं, तो मान लेते हैं ये सारे डिस्टिंक्ट है, दिस इज नॉट ए बिग इशू। अब मुझे बताना है जूनियर काउंटेबल है। ठीक है, नाउ आई डिफाइन ए मैप। नाउ वी डिफाइन a map that is f from a1 union a2 to natural number n as मैं देखो मैं आपको एक चीज पेज बता देता हूँ, लिसन हियर। जब हम बोलते हैं a is equivalent to n means there exist 1 on 2 mapping between a and n, तो उसमें आप फंक्शन a to n लिखो, जहां फंक्शन n to a लिखो, डजंट मैटर 1 on 2 होगा तो बिहेवियर एक जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन मोस्टली हम एन को इधर रखते हैं क्योंकि कई केसेस को हम एन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अल्टीमेटली इक्विवेलेंट क्या होता है कि दोनों में मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आपको पता 1 1 मैपिंग हो तो उसको आप इनवर्स भी कर सकते हो, इसलिए आप कहीं भी लिख सकते हो एज पर जो सुटेबिलिटी। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? क्योंकि 1 1 मैपिंग जो होती है उनमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप नेचुरल नंबर को कहीं पर डोमेन या रेंज साइड भी फिट कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, और इस केस में मैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, राइट? तो आई डिफाइन इट, पहले मैं vi फाइनाइट है, तो आई डिफाइन इट एज f ऑफ bi इज इक्वल टू i एंड f ऑफ aj। देखिए bi कितने है मेरे पास, n। ठीक है, a1 n है ना, तो b1 वाले, तो b1 b2 bn की वैल्यू आ जाएगी, b1 की वैल्यू आएगी 1, b2 की वैल्यू आएगी 2, b3 की आएगी 3, bn की क्या आएगी n। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जहां तक ये 1 से लेकर n तक की वैल्यू सारी ले लेगा नेचुरल नंबर की, है ना, राइट? अब इसके अब ये वैल्यू जो ये ले रहा है एफ ऑफ b1 ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। हम कैसे बना रहे हैं फंक्शन, मैं बता रहा हूं आपको, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 1 फंक्शन है। तो जो ए जे है, ठीक है, तो ए जे कहां से शुरू होना चाहिए, n+1 से, है ना, n+1 से। तो फिर अगर ये जहां से शुरू हो तो मैप मेरा सही हो जाएगा, 1 1 2 बन जाएगा। तो व्हाट आई शुड डू, तो आई शुड राइट इट n+j वेयर j1 होगा n+1, j2 होगा n+2। तो इस तरह से मैं ये मैप डिफाइन कर पाऊंगा। दिस इज द वे टू कंस्ट्रक्ट द मैप। ठीक है, तो व्हाट आई राइट हियर, दिस आई राइट हियर aj is this is n+j, राइट? तो अब आपका मैप कैसा बन गया, देखिए पहले आपके एलिमेंट आ जाएंगे b1 b2 सो ऑन bn, ये आएगा दिस a1 a2 a3 सो ऑन। तो b इसकी वैल्यू 1, इसकी 2, n की आ गई n, इसकी आ जाएगी n+1, इसकी आ जाएगी n+2 सो ऑन। जो इधर आके an आएगा उसकी आएगी n+n सो ऑन। तो सभी का डिफरेंट इमेज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस मैप को कंस्ट्रक्ट करा है। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम ना थोड़ा समझ लो, मैप को कंस्ट्रक्ट करना है,
देयर एग्जिस्ट, एक मैप भी आप बना लेते हो इस तरह का, तो योर जॉब इज डन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई कैन से दैट, नाउ आई कैन से, राइट, सो हियर दिस f is 1 1 एंड onto, सीधे बोल सकता हूँ ऐसे। onto कैसे, देखिए आपको चाहिए ये n का इमेज, मैं बोलूंगा bn, जहां पे चाहिए आपको इसका इमेज, देखो जहां पे क्या होगा n प्लस j है, मैं बोलता हूँ मुझे a10 का इमेज चाहिए, a10 का, तो n में से 10 माइनस कर दूंगा, नहीं, ठीक है, तो आप 1 1 onto इसको कंस्ट्रक्ट कर लोगे, और हमें डायग्राम से दिख रहे हैं सारे अलग अलग हैं, और हर उसमें हर एक एलिमेंट, हर एक नेचुरल नंबर कवर हो रहा है, कोई छूटेगा नहीं आपका, हमने सीक्वेंस ही ऐसे क्रिएट करी इसकी, ठीक है, ये होगी एक केस। अब आएगा केस नंबर 3, केस नंबर 3 आएगा जब दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, a1 एंड a2 बोथ आर काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, दैट इज we can say let a1 is हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं थोड़ा, a1 a2 a3 so on an so on, इनफाइनाइट है, ठीक है, वो a2 को बोल दो b1 b2 सॉरी से b3 so on bn so on इनफाइनाइट, राइट, अगेन हमें जूनियर से मैप कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, सो हियर a junior b is, I write here a1 junior a2 is a1 a2 so on an so on junior b1 b2 so on b, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, स्पेस नहीं आ रहा मेरा, here a1 junior a2 is a1 a2 so on an so on junior b1 b2 bn so on, तो दोनों का जूनियर ले लिया हमने, ठीक है, ये आ गया a1 जूनियर a2। अब दोबारा हमने मैप, तरीका हमारा वही रहेगा, लेकिन सभी एलिमेंट्स कवर आ जाएं, ठीक है, तो फिर इनमें, इन दोनों में एलिमेंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्या इनमें कॉमन एलिमेंट अगर होंगे तो उनको हम निकाल देंगे, तो इनफाइनाइट सेट है, तो वी कैन से दैट a1 and a2 may have some इनफाइनाइट में आ सकते हैं, may have some common elements, ठीक है, so deleting the common elements, कॉमन एलिमेंट को डिलीट करेंगे, ठीक है, कामा वी मे राइट a1 junior a2 as देखिए a1 b1
ठीक है, A2 B2 A3 B3 so on AN BN एंड so on। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, टू अवॉइड रेपिटेशन, कि रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, इसको रहने दो, हम रेपिटेशन निकाल चुके हैं। ठीक है, क्या ये काउंटेबल होगा? स्टूडेंट्स देखो, हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी। जैसे मैं क्या करूंगा, इसका इमेज 1, इसका इमेज 2, इसका इमेज 3, इसका इमेज 4 5 सो ऑन। तो मैं अगर नंबरिंग में एक ऑर्डर में लिख देता हूं और कोई भी सेट ऐसा लिखा जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिखेंगे 10 we find that each element of A union A2 has definite position, has definite position। ठीक है, it means that this A1 union A2 is equivalent to n। मीन्स अगर आप किसी को ना नंबरिंग फॉर्म में एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिख सकते हो और उस अरेंजमेंट में कोई एलिमेंट आपका मिस नहीं होता है तो नेचुरली वो काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल बेसिकली यही होता है कि आप उसको काउंटेबल फॉर्म में लिख सकते हो और इस काउंटेबल फॉर्म में आप कोई एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए आप लोगों से। 0 1 में भी हम लिखा था बट हमें वहां पे एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया जो स्किप हो गया था और बहुत सारे हो जाते हैं उसमें, इसलिए वो काउंटेबल नहीं बन सकता। ठीक है, और आपको मैंने इन जनरल बताऊं, जो डिस्क्रीट फॉर्म में सेट होंगे ना, डिस्क्रीट फॉर्म में वहां पे काउंटेबिलिटी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो तो देखिए धीरे धीरे हमने कहां से कैसे कैसे प्रूफ करना शुरू कर दिया। अब हमारा प्रूफ का तरीका चेंज होता जा रहा है। जस्ट अगर आप उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में लिख पा रहे हैं, नंबरिंग हो पा रही है तो उसकी काउंटेबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब मैं ओके क्वेश्चन दूंगा आपको, दैट इज फॉर एज ए असाइनमेंट फॉर होम। द क्वेश्चन इज exercise। Question is, show that union of finite number of countable sets is countable। अब हमने क्या कर दिया, दो की जगह क्या कर दिया, फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल कर दिया। मीन्स दैट इज अगर आपके पास A1 यूनियन A2 यूनियन कहां तक, AN तक, ये काउंटेबल बताने हैं। ठीक है, आपको मैं हिंट दे देता हूं, जो डू इट बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। दो के लिए आपने अभी कर दिया है ना,
and you suppose it is true for n is equal to k and you prove it for k plus 1. ठीक है, इसको ट्राई करिएगा बच्चा। तो अब इसमें ये कुछ टॉपिक अभी हमारे रहते हैं, मे बी अभी हमने रैशनल नंबर्स के ऊपर नहीं करा। शो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। अब देखो जो जूनियर वाला कंसेप्ट जो आपने किया ना, जूनियर ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, इसका बहुत बेनिफिट है आगे। बेनिफिट क्या है? जैसे हमने इंटीजर्स का केस किया था, आपको याद होगा हमने किया था, ये क्वेश्चन किया था, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज काउंटेबल। याद है आप लोगों को? हमने इसमें मैप डिफाइन किया था n/2 1 minus n/2 समथिंग लाइक दिस। राइट। अब इस काउंटेबल का जो ऊपर हमने क्वेश्चंस करे हैं उसकी मदद से भी इसको हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ये क्या होता है बेसिकली, देखो 0 1 2 3 so on, -1 -2 -3 so on, right? So I can write it as so on -3 -2 -1 इसको यूनियन this 0 then union 1 2 3 ब्रेक कर लिया। और दे बेसिकली क्या है, दिस इज माइनस नेचुरल नंबर्स, दिस इज यूनियन सिंगलटन एंड दिस इज यूनियन नेचुरल नंबर। नहीं ये बना ना आपको स्टूडेंट्स, राइट? तो ये नंबर आ गए नेचुरल नंबर काउंटेबल। सो सिंस दे ऑल आर काउंटेबल, so since we can say natural number and the singleton is finite, they are countable, है ना? And union of countable sets is union of countable sets is countable. So this implies integer this is minus n union this is countable. सिंपल है ना? तो इस कंसेप्ट से हम इंटीजर का क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हो। बाइफरकेट कर लिया इसको। ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स के जो भी सबसेट होंगे वो सारे काउंटेबल होंगे। अब रैशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर से बड़ा है, इट इज सुपरसेट ऑफ नेचुरल नंबर बट दैट इज आल्सो काउंटेबल। ठीक है, वो भी काउंटेबल है। अब वो हमें प्रूफ करना है अभी। ठीक है, आप इस ठीक है, तो एक मिनट में फर्स्ट आई क्लोज द स्क्रीनशॉट। अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, आप इसको पेन डाउन कर रहे हो? जो पेन डाउन करते हो बच्चा, नोट्स बनाते हो घर में? कुछ बच्चे कल मुझे मैसेज कर रहे थे, दे वांट टू आस्क समथिंग और कंफर्म, तो मैसेज कर रहे थे। तो आई थिंक कौन था, आई थिंक काटल। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा बोलो। किसके बारे में? माइनर एग्जाम? माइनर एग्जाम, माइनर एग्जाम ना, एग्जामिनेशन जो आपके माइनर एग्जाम होने हैं। माइनर एग्जाम बच्चा आपके जैसे
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 यूनिट्स आपके माइनर एग्जाम होंगे, आपको डेट बता दी जाएगी। फर्स्ट यूनिट से आना है, जो आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने। एनी अदर क्वेश्चन? किसने कुछ पूछना है? क्लास जब होती है बच्चा पूछ लिया करो जो पूछना होता है। जब क्लास खत्म हुई, यू कैन आस्क, यू कैन एनी क्वेरी विच यू आर हैविंग एनी क्वेरी, यार आपके माइंड में कुछ भी अगर है, कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्लास में सारे बच्चे होते हैं, तो हो सकता है कोई आप में से कोई अच्छी राय दे दे। तो माइनर आपके होने हैं मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होने हैं, ऑफलाइन तो हो नहीं सकते। तो जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 यूनिट्स, जब आपके सभी के 2 यूनिट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद होता है कुछ रूल्स होते हैं माइनस के, हो सकता है कुछ लोग ले रहे हो, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 यूनिट ही हम लेने हैं, हमने पहले नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी घर में पढ़ाई करो, चीजों को समझो, समझ आएंगी चीजें तो यू विल एंजॉय मैथमेटिक्स। नहीं समझ आएंगी तो भागोगे मैथ से। 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप मैथ्स को एंजॉय करते हो या मैथ से भाग सकते हो। तो लेकिन हमारे एक सर थे, प्रोफेसर आर के सिंह, इज वेरी मच सीनियर मोस्ट अभी तो, वो कहते थे कि यू कांट एस्केप फ्रॉम मैथमेटिक्स, इफ यू रन अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज बिहाइंड यू। मैथमेटिक्स आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि आपने घर में कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसे, घर में जो मर्जी करो, कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिक्स यूज होता ही रहता है ना। सो यू कांट एस्केप फ्रॉम मैथमेटिक्स, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। और इस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। इवन जब मैं एमएससी में पढ़ता था, मुझे इस टॉपिक में मुझे भी कुछ डाउट आए थे। मतलब जैसे इनफाइनाइट सेट ले लिया है ना, और इनफाइनाइट सेट का जो सबसेट होता है ना, इनफाइनाइट सेट्स का जो सबसेट होता है वो भी उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी, वो उसकी नेचुरल नंबर और इवन नंबर की। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं, इवन नंबर क्या है, इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2 4 6। हमें दिख रहा है ई सबसेट ऑफ एन, बट दे आर इक्विवेलेंट, पर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों भी इक्वल है। तो मुझे भी उस समय यही डाउट आया है, कैसे हो सकता है इसमें आर नंबर तो आ नहीं रहे, ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? बट इक्वली वो इक्वलेंट है। तो इक्वलेंट इज समथिंग एल्स, क्योंकि आपकी काउंटिंग जो है ये चलती रहती है ना। सो उस सेंस में जब हम इसको देखते हैं, तो इक्वलेंट इज ए डिफरेंट कंसेप्ट। अदरवाइज आदमी तो यही सोचेगा यार ये कैसे इक्वलेंट हो सकती है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट तो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा, इसमें 3 नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर में सब आ रहा है, बट मैथमेटिकली दे आर इक्वलेंट सेट्स। तो ऐसी चीजें माइंड में आनी है, और ये आना कोई वो नहीं है, गलत नहीं है। और आप में से ना, ये अभी मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे लेट ऐड होते हैं ग्रुप में ना, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ हमारे पास अटेंडेंस आ जाती है। जिसका क्लास अटेंड करने का एफिशिएंसी लेस देन 70% होगा, उसको अब्सेंट मार्क करेंगे हम। मैं अभी जैसे आप लोगों को, जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए बताने का, लेकिन हाँ मैं बताता हूँ। मैंने 2 जगह ऐप रखा हुआ है। जैसे अभी लास्ट क्लास आप लोगों की हुई थी, आई टेल यू कि आप लोगों का क्या पोजीशन था। अटेंडेंस जी आज कितनी है, 14 है ना, आज 14 है। आज की तो अभी अपडेट नहीं हुई है। जो 12 को आपकी क्लास हुई थी, अभिषेक काटल 93% इसने मतलब एफिशिएंसी दी इसकी क्लास की। अदिति शर्मा 92%, कृति 93, दिशक सिंह 87, नितिशा 84, निहार शर्मा 22%। हुई निहार शर्मा भाई है आज क्लास में? निहार रोल नंबर 126, 22% एफिशिएंसी। तो जिसने क्लास ऑन करके ये कुछ मोबाइल पे और ही करता रहा होगा आगे विषय पंगे,
उसके बाद साक्षी 94%, नेहा 82%, सलोनी मगोत्रा 94, अनिरुद्ध 93, अनुराधा 90, देन जितेश 61, जितेश 61% हैं। देन चौहाना अख्तर 79, अब्दुल मनन 93, देन बानू बलोड़ी 87, माधव शर्मा जी आपकी क्लास में है कोई बच्चा? माधव है? माधव 7% एफिशिएंसी। बच्चा मैं आपको एब्सेंट ट्रीट करूंगा और शाटे निकाल दूंगा, ठीक है? इसी नॉट द वे। आपने जूजी ऑनर में नहीं आना चाहिए था, आर्ट्स में एडमिशन लेनी चाहिए थी। मैथमेटिक्स करना है तो अच्छा मेहनत करो जैसे किसान मेहनत करती, अदरवाइज मैथ्स नहीं सीख पाओगे। साकिब अफजल 24%, शींदर 69, सिद्धार्थ सिद्धांत 76, ठीक है। सुहासी गुप्ता 92, देन कंबल और कौन है? हाँ प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा है 37% एफिशिएंसी। तो आपकी क्लास में मालूम हो जाता है। और प्रेजेंट थे 47, एब्सेंट थे 9, बट एफिशिएंसी तो पता चल जाता है कि हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर क्लास। तो इसलिए बच्चा ये मत सोचो कि हमें नहीं पता चल रहा आप घर में क्या कर रहे हो, हमें सब पता चल रहा होता है आप घर में क्या कर रहे हो। क्लास ऑन करके बैठे हो या भाग चुके हो, समझ रहे हो नहीं या नहीं समझ रहे हो। तो जो एफिशिएंसी जो है वो बता देती है हमें। तो बाकी पढ़ो बच्चा, नोट्स बनाओ, रीडिंग करो, चीजों को इनको अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट को। बूंद बूंद करके दरिया भरेगा और यही आपको आगे चीजें काम आएंगी। कंसेप्ट और नॉलेज हमेशा काम आती है, प्रोवाइडेड आप उसको क्रैम कर नहीं करो। डोंट क्रैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो बीच में हम जैसे जूनियर खत्म होगा 1-2 दिन के लिए डाउट सेशन रख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी बच्चा बोलो। हम्म। किसमें? फाइनाइट? अच्छा, मैंने आपको तभी तो बोला जो फॉलो द मेथड ऑफ इंडक्शन, उससे बाहर निकल जाओगे ना आप। केसेस से केस नहीं लेने ना। एंड केस मोस्टली दो एलिमेंट के लिए लिया जाता है, जब ज्यादा हो जाता है ना, जो प्रूव इट फॉर 2 एंड यू देन फॉलो द मेथड ऑफ इंडक्शन। यू गॉट इट माय पॉइंट? दो के लिए प्रूव कर दिया हमने। देन यू सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k का मतलब हो गया कि a1 a2 ak इनका यूनियन काउंटेबल है। यू हैव अज्यूम दैट। देन यू प्रूव इट फॉर k+1। तो k+1 में k तक का दिया होगा, k का पहले का अज्यूम किया हुआ है, k तक का अलग रखो, k+1 को अलग कर दो, फिर k एक हो गया यूनियन a1 टू ak वन सेट, k+1 इज अदर सेट। तो अगेन दो सेट बन जाएंगे और जूनियर टू फाइनाइट द्वारा काउंटेबल का काउंटेबल हो जाएगा। तभी तो इंडक्शन फॉलो करते हैं बच्चा। मैक्स ज्यादा एलिमेंट में हम केसेस नहीं ले सकते ना, वो तो फिर क्वेश्चन टू लेंथी। तो मैथमेटिक्स इज ऑलवेज यूज्ड टू मेक द थिंग सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स। यू गॉट इट? गुड। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है ठीक है। हाँ जी बच्चा, पूछना कुछ किसी ने? नो? ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग। ओके।